Hello, young scientist. Welcome to yet another interesting topic from chemistry class 10th. ना ये जो चैप्टर है हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है. ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन क्लास 10th वी विल स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ केमिस्ट्री विद दिस चैप्टर. और ये चैप्टर जो है ना, ये दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस. तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. अगर कोई चीज केमिकली रिएक्ट हो रही है तो उसे देख के कैसे पता लगाया जा सकता है दैट yes, this is the chemical reaction which is happening. And in this whole world we have different types of chemical reaction which is taking place. Fine, with the help of this chapter we are going to unfold all the secret about chemical reaction and will have the knowledge of judging whether a chemical reaction is happening or not. So let's start. So as the name suggests, chemical reaction and equation, the first thing which we need to discuss and know about is what is chemical reaction. So what is a chemical reaction? Let's read. A chemical reaction is a process in which one or more substance are converted into new substance, that is called product, and the things which are being used are called the reactants. We'll come to it later. Now let's understand what this sentence is actually telling us. Let's suppose I have a piece of paper in my hand and I just tear it out. Fine. So imagine I have a piece of paper and I just tear it out. If I ask you and I give you a tape and I ask you to fix it, will you be able to fix it? Yes. मैंने सिर्फ टेप लिया, दोनों पेज को अच्छे से अलाइन किया और जोड़ दिया. करेक्ट. सो विल गेट द पेज बैक. अगर मेरे कॉपी का कोई पेज या कोई मेरे बुक का पेज फट गया है तो मैं सीधा उसमें टेप लगाऊंगी अच्छे से अलाइन करके और फिर मैं उसको यूज करूंगी. क्लियर? वेरी गुड. नाउ imagine another scenario wherein I take the page and I burn it. Fine. अब मैं आपको बोलूंगी कि वापस उस पेज को मेरे कॉपी में जोड़िए. Will you be able to do it? Think, will you be able to do it? No, because the thing I was having was my page from the copy of the book. Now the thing which I have now after burning is only the ash. क्या कभी हम कोई ash को दोबारा पेपर बना सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं? No. So the first thing which we discussed about was a physical change, not a chemical change, because it was just the paper. I teared and I get the paper only if I, fix it. But if I, in the second scenario, take the paper and burn it, I'm not getting paper, I'm getting ash. It's a new thing, a new material which has, produced. So it's a new product. This is the same thing which this sentence is telling us. In a chemical reaction, it's a process in which one or more substance is reacting or converting into a new substance that is called product. All right. Now let's understand how this is being happening. कैसे होता है ये? जब हम कभी बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो दो प्रोसेस से होता है. या तो उनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए और वो कुछ नया चीज बना दे, या तो उनके बीच का बॉन्ड टूट जाए और वो कुछ अलग चीज बन जाए. तो इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग और द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. फाइन. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं इससे. क्या है ये हमारा Na है. व्हाट इज Na? सोडियम. एंड सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है. जब उसने सोडियम के साथ क्लोरीन को रिएक्ट होते हुए देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ओके. और जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वहां क्या बना? NaCl. What is NaCl? The table salt which you are having every day. Okay. So whenever Na is in any ways, that is the formation of bond. In any ways they are reacting together and there is formation of bond between them, they are getting a new product which is called NaCl, the salt. Clear? Let's look up into another example.
Rusting of iron. Do we know what is rusting of iron? Rusting of iron happens when you keep the iron substance, any iron substance, if you keep it in open air with moisture, it becomes into reddish powdery substance. Zang जिसे कहते हैं हम लोग हमारे हिंदी में, ठीक है? So whenever that zang is being produced, will you be able to get iron out of the zang? No. हमें रस्ट से कभी वापस नहीं मिलता हमारा आयरन मेटल. So it's a chemical process. Now what's happening here? Let's see. We have iron. Whenever it is reacting in open air with oxygen, it is again forming a bond with oxygen and is forming iron oxide. This iron oxide is actually called the rust. Is it clear now? Alright, let's look up something else. Now we have burning of magnesium. मैग्नीशियम व्हाइट स्ट्रिप्स में आता है, ठीक है? हमने उसको क्या किया, आग लगाई और उसमें आग लगाने के बाद जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया. इट्स अ केमिकल थिंग. व्हाई? बिकॉज जब वो चीज बनी तो वो अब ना मैग्नीशियम है और ना ही ऑक्सीजन है. वो क्या है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है. And magnesium oxide is totally different from our magnesium and oxygen. Here also what is happening? The formation of bond is happening. दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है. अब अगर मैं चाहूँ भी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से या तो मैग्नीशियम बनाओ या तो ऑक्सीजन बनाओ, it is not possible. So in a chemical process you cannot retrieve the reactant back. Okay? जो एक बार बन गया, कन्वर्ट हो गया, वो दोबारा कभी वापस नहीं आता. तो हमने यहाँ देख लिया फॉर्मेशन. अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ब्रेकिंग भी होता है, तो ब्रेकिंग कैसे होता है? लेट्स सी हियर. नाउ व्हाट इज ब्रेकिंग हियर? इन ब्रेकिंग, लेट्स सपोज आई हैव वाटर, okay, and I need to break it. I can break it through a process called electrolysis. Okay, we'll discuss everything further in the chapter. Now what is this happening? जब ये एक मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा, तो ये किस में टूटेगा? H प्लस OH. ठीक है? अगर सॉरी, इट इज H प्लस OH नेगेटिव. ओके, अगर मैं चाहूं भी कि ये वापस H2O बन जाए, सो इट इज नॉट पॉसिबल. So once a chemical reaction has happened, a new product has been produced, it is very difficult or it is impossible. It does not produce or get back the reactant. Clear? Fine. Let's move on to the next topic, of the chapter, that is chemical equation. Now, whenever a chemical reaction is happening, मैंने बोला आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और आयरन ऑक्साइड बना दिया. मैं तो सिर्फ बोल के भी रह सकती थी. अगर मैंने बोला मैग्नीशियम का स्ट्रिप लिया, उसको मैंने जलाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना गया. फाइन. सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज हैपनिंग. इस रिएक्शन को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगी अपनी किसी कॉपी, किताब या पेज में, तो मैं सिर्फ वर्ड्स में बोल के तो नहीं दे सकती कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये बना. सो आई डोंट say it or write it in this way. How do I do it? I represent a chemical reaction using symbols and formula. So what is the formula and symbol for my magnesium or oxygen or magnesium oxide? मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो होता है MgO. फाइन. तो जब मैंने सिंबल्स और मैंने फॉर्मूलेस के साथ अपनी किसी चीज को रिप्रेजेंट किया और उसको एक लाइन में लिखा, वो होता है मेरा केमिकल रिएक्शन. So this is the procedure of writing a chemical reaction into like this. Fine. So here what is happening? We have H2, that is hydrogen, and this is reacting with oxygen. क्या होता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है? Any idea? Common idea? Very good. So whenever we have hydrogen and it is reacting with oxygen, we produce water. But इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, हम इसको लिख के बोलेंगे. तो लिख के जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? H2 हमारा गैस है, उसने O के साथ रिएक्ट किया, that is O2, and we are getting H2O. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, दो तीन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है.
एक टर्म है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो चीज होता है जो हमेशा एक रिएक्शन में राइट साइड को लिखा जाता है, यानी कि whatever is being reacted to form a product, a new thing, तो वो चीजें मिल रही है आपस में, या तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पर वो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है और कुछ नया बन रहा है। तो जो चीजें आपस में रिएक्ट होती है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इन दिस केस व्हाट इज द रिएक्शन? हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। द नंबर वी विल कम लिटिल लेटर। ओके, नाउ द अदर टर्म इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वो जो बनाया रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके। तो क्या बनाया हमारा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, दैट इज वाटर। ओके, अब यहाँ पे जो लिखा गया है वो ये है कि जब मैंने अपने हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया, ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं? O2 2, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। लेट्स सी, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है दो हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस इज द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ माय वाटर। नाउ हमारे पास यहाँ पे कितने O है? दो O है। ओके, तो एक के साथ कितने जुड़ते हैं? तो दो के साथ कितने जुड़ेंगे? चार हाइड्रोजन। ओके, तो मुझे अगर H2 लिया है, H2 में तो सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है, तो मुझे कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे? दो, इसीलिए मैंने चार हाइड्रोजन के एटम लिया। 2 इंटू 2 4। फाइन। अब जब मेरे पास 2 इंटू 2 4 है, तब मैंने देखा कि मेरे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बने? एक ये वाला और एक ये वाला। दैट मीन्स आई हैव 1 and 2 molecules of water. But that's very interesting thing which we'll know now. Count the number of hydrogen atom 1 2 3 4. Count the number of oxygen 1 2 in reactants. Now count the number of hydrogen and oxygen in product 1 2 3 4, 4 only, and oxygen 1 2. That means whatever is being reacting as my reactant in a chemical reaction, the same number of atoms are going to stay as the product in the chemical reaction. तो जो reactants में जितने number of atoms है और products में जितने number of atoms है, कभी change नहीं होगा, बस उनमें chemical bond की formation या breaking हो जाएगी, number change नहीं होता है। Clear? जितना लगा उतना ही बनेगा, या जितना वहाँ है उतना ही टूटेगा, कुछ कम या ज़्यादा नहीं हो जाता। Fine? So this is the reactant and this is the product in which these numbers are showing you the number of atoms which are being used and which are now being formed as a product. Clear? Now यहाँ पे लिखा गया है example which we have discussed. Now reactants are written on the left side. Fine? No, sorry. अगर मैं ऐसे देखूं तो it is on my right side, but if I see like my this, so every time when you are writing on your copy, so the reactants should be written on the left side and the product should be written on the right side, and the products are written on the right side. So an arrow points from reactant to the product indicating the direction of the reaction. आपने देखा होगा हमेशा हर केमिकल रिएक्शन में एक एरो डलता है, देखिए मैंने भी डाला है। तो व्हाट इज दिस एरो स्टेटिंग? एरो इज स्टेटिंग दैट दो ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना रहा है, ये कभी बैक नहीं जा रहा, रिवर्स नहीं हो रहा, ये इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। फाइन। तो ये हमें क्या बनाता है? एरो हमें क्या पॉइंट करता है? दैट द रिएक्टेंट्स आर फॉर्मिंग टू प्रोडक्ट। तो ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। अगर ये एरो ऐसे हो जाता तो कुछ और होता। फाइन। सो ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सो इन दिस what is the direction of reaction? That my 4 hydrogen are reacting with oxygen to form the 2 molecule of water. Is this clear? Please note down the reactants, the products, these 3 simple things and the example with the structure. Next we will move on to the next topic of the chapter. All right. So next we come down
to the balancing of the chemical reaction. Now, मैंने जब प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था, प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि मेरे जितने रिएक्टेंट्स हैं, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, जितने मेरे रिएक्टेंट्स थे उतने ही मेरे प्रोडक्ट्स मेरे। अब हम बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन का फंडा समझेंगे। व्हाट इज इट? नाउ बैलेंस्ड equation has the same number of reactant atoms of each element on both the side. Fine. So जितने भी हमारे atoms है on both the side, whether it is reactant or on the product, they are same. Why this is same? This is because matter is neither created nor destroyed. Fine. So according to the law of conservation of masses, ना हम matter को बना सकते हैं ना उसको destroy कर सकते हैं. Fine. So whenever a chemical reaction is happening, okay, now we have a reacting and we have a product. Now जितना reactant हमारा लगा, okay, as a matter, उतना ही product हमें मिलेगा. Supposing मैंने 4 atom of something लिया, वो कुछ भी bond बना के या break करके भी मुझे मिलेगा तो 4 ही मिलेगा, वो ना तो 3 होगा ना तो 6 होगा. Clear? So now let's look what is equation balancing and how do we do it. So the simple steps which we follow is write the correct formula of the reactants and products. सबसे पहली बात तो हमें correct formula या symbols आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो मुझे Mg, दैट इज मैग्नीशियम, उसका सिंबल पता होना चाहिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जिससे MgO, उसका फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट. अब जो हमारे रिएक्टेंट है और जो हमारे प्रोडक्ट है, मुझे उन सब के एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हो रहे हैं उसे काउंट करना है. ऑलराइट, देन adjust the coefficient to balance the atom on both the sides. What is the coefficient? Coefficient is the numerical value which is written in front of the symbol or the formula of the compound. Fine. इस coefficient को हमें adjust करना है, and thereby which we can adjust the values of the reactants and the product. Now check the equation to ensure masses is conserved. अब हम चेक करेंगे, अगर मेरा 6 लगा है वहां पे ऑक्सीजन तो क्या 6 यहाँ पे है, अगर मेरा 2 लगा है हाइड्रोजन तो क्या 2 यहाँ पे है. So we'll check in this scenario and we'll see whether the mass of the oxygen there and hydrogen there is same as to the product or not. Let's take up a simple example of formation of this. What is this? This is my water molecule. So we know that my water molecule is H2O, and how are we getting it? We are getting with hydrogen. How hydrogen के कैसे लिखते हैं हम? ऐसे. ऑक्सीजन के साथ मिलके बनता है हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं हम? O2. ये हमारा जनरल फॉर्मूला है. How we write the hydrogen, oxygen and my water. Clear है? Okay. Now अब क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये मेरे रिएक्टेंट्स है. ओके, एंड ये मेरा प्रोडक्ट्स है. ऑलराइट, नाउ अब हम काउंट करते हैं. अगर मैं H की काउंट करूं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2. ऑक्सीजन कितने हैं? 2. यहाँ पे H की काउंट करूं, हाइड्रोजन कितने हैं? 2. लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 1. इज इट बैलेंस्ड? नहीं, क्योंकि मेरे ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा और यहाँ कम है, तो ये बैलेंस नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है रूल. दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन. हाउ डू वी बैलेंस इट? अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ठीक है, तो क्या बन गया अब मेरा इस तरफ? 2 into 2 दैट इज 4. फाइन. अब जब ये 4 हो गया, ओके, तो क्या यहाँ पे मेरा 1 है? यस. तो ये भी नहीं हो सकता पॉसिबल. तो हाउ डू वी डू इट? नाउ क्या मैं इस जगह पे, यहाँ पे मेरे यहाँ पे 1 है ना, तो मैं यहाँ पे 2 करूंगी,
तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ। ओके, तो मैंने अगर यहाँ पे 2 करा तो ऑक्सीजन तो मेरे 2 हो गए, लेकिन क्या हाइड्रोजन मेरा 2 रहा? नहीं, हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया। गड़बड़ हो गई, यहाँ तो 2 थे, वहां 4 हो गए, पर एटलीस्ट ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। हो गया, फाइन। सो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब मैं देखती हूँ मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ जो मैं हाइड्रोजन को भी 4 बनाऊं। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लगा सकती हूँ? 2 इंटू 2 इज 4। तो अब मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। अब लेट्स सी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। क्या अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस को फॉलो कर रहा है? Yes, that means this is a balanced reaction. Fine. तो हमेशा आप अपने प्रोडक्ट को चेक करिए कि वहां पे कौन से कितने कितने मासेस में या कितने कितने नंबर में आपके एटम प्रेजेंट है। उस प्रोडक्ट को देखने के बाद आप रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स में चेंज करिए एंड देयर आफ्टर बाय कैलकुलेटिंग इन दिस टेबुलर मैनर यू कैन बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। कुछ नहीं है, बहुत इजी फंडा है, सिर्फ आपको इन कोएफिशिएंट्स को चेंज करना है और नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाएगी। I hope everybody has get no idea about how you can balance out the equation. Let's move on to the next topic. So the next topic of this chapter is judging how we can see that the chemical reaction has taken place. Now अगर कोई भी रिएक्शन कुछ भी जगह कहीं पे हो रहा है और मैं बोल रही हूँ या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो कुछ तो मैंने जज किया, कोई बेसिस तो रहा होगा जिसके ऊपर मैं देख करके या जज करके ये बोलती हूँ दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। करेक्ट? ओके, नाउ ये जो बेसिस है जज करने का ये क्या है? तो मैं इसको 5 फिंगर मॉडल के हिसाब से देखती हूँ। ठीक है, तो 5 ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं या बेसिस हैं जिसके ऊपर आप देख करके सोच सकते हो और बोल सकते हो दैट यस दिस इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग। पहला, सबसे पहला जो हम देखते हैं, मैं नीचे से चलती हूँ, चेंज ऑफ कलर। ओके, तो जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ओके, उसमें चेंज ऑफ कलर आपको दिखेगा। क्लियर? अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, आयरन, Fe मतलब आयरन, सॉलिड आयरन के चंक्स, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट एक लिक्विड है सॉल्यूशन, उसमें हमने आयरन के चंक्स डाल दिए। क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हमारा नीचे रह जाएगा। ओके, तो जब हम इस तरह की चीज देखते हैं जिसमें आपका एक सॉल्यूशन था और उसके बाद आपने उसमें कोई चीज डाली, यानी दोनों चीजों ने रिएक्टेंट, as a reactant they behaved and you are getting a new product, so that means it's a chemical reaction. जब इस तरह की रिएक्शंस हो रही हैं तो हमारे को चेंज इन कलर दिखेगा। क्लियर? इसका कलर पहले कुछ और था, इसका कलर कुछ और हो जाएगा। जब इस तरह का कलर चेंज हमें दिखेगा then we can say that there is a chemical reaction which has happened. Fine. Second is evolution of gas. अब क्या होता है, जैसे कभी भी देखो कोई मेटल है, कोई मेटल का पीस है, जैसे आयरन हो, जिंक हो, या कोई भी मेटल आप ले लो, उसके अगर ऊपर आप एसिड गिराते हो, हमने नॉर्मली देखा भी होगा घरों में कभी एसिड यूज हो, तो जैसे ही हमने एसिड गिराया ऊपर से धुआं निकला, कोई गैस निकला, गैस निकलता है एग्जैक्टली तो हमने अब यहाँ पे क्या देखा कि जिंक हमारा मेटल था, उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो है वो डाल दी गई। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के ऊपर डालेंगे तो उसमें से गैस निकलेगी विच इज माय हाइड्रोजन गैस। क्लियर? और हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इन विच हाइड्रोजन हैज बीन रिलीज्ड by the reaction of hydrochloric acid and zinc. Fine. Okay. Next हम क्या देखेंगे? Third, which is change in temperature. अब कभी भी किसी चीज के ऊपर आप एसिड डालते हो, ठीक है, और उसको देखते हो ना, तो धुआं तो निकलता ही निकलता है, कभी कभी वो सराउंडिंग या वो चीज जो है ना वो गर्म हो जाती है। फाइन। तो जब भी हमारा कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है
तो या उसमें चेंज इन टेम्परेचर हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई रिएक्शन हो रहा है और उसका ना या तो वो गर्म हो रहा है या तो वो ठंडा हो रहा है, ओके। तो जब इस तरह की चीज होती है तो भी वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया वाटर को लिया और फ्रीज कर दिया तो वो ठंडा हो गया, नो। हमने तो वाटर को लेकर के पर्पसफुली उसको फ्रीजर में डाला तो वो फ्रीज हुआ, वापस निकालेंगे तो वाटर बन जाएगा, तो केमिकल रिएक्शन तो है नहीं, तो फिजिकल चीज है। हमने टेम्परेचर को नीचे किया तब जाके ये चीजें की। हम यहाँ पे टेम्परेचर को नीचे या ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं जिसके वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है, या तो वो बढ़ता है या तो वो घटता है। जब हीट निकलती है, ठीक है, जब हीट रिलीज होती है यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फाइन। तो अगर कभी कोई एसिड वाला रिएक्शन हो रहा है तो आप देखोगे कि बीकर गर्म हो गया, ओके। नाउ जब हीट लगती है किसी चीज में, हम हीट अंदर चली गई, जैसे कोई चीज हो रही है, सराउंडिंग का हीट खींच करके उसने ले लिया, ओके, तब आसपास का एरिया क्या हो जाएगा, ठंडा। तो जब हीट टेकन, व्हेन हीट इज टेकन एंड इट बिकम्स कूलर, then it is called endothermic reaction. Clear? Okay. Now next we come on to the fourth thing, which is change in state. Okay. चेंज इन स्टेट मतलब कि हमारा पहले तो कुछ और स्टेट का था, इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस, जब आपस में रिएक्ट हुए तो वो बन गए कुछ और स्टेट। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में दिखाया था आपको कि H2 प्लस O2 हमें वाटर दे रहा है। H क्या था, गैस, O क्या था, गैस, H2O क्या है, लिक्विड। समझ आई बात, समझ आई। इसका मतलब दो चीजें पहले गैस थी, बाद में स्टेट चेंज होकर के लिक्विड बन गई। क्लियर है? दैट मीन्स whenever a chemical reaction is happening there is a state change. Clear? All right. Now formation of precipitate. What is formation of precipitate? जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, देन जैसे हम यहाँ देखते हैं AgNO3, AgNO क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ना एक्वस फॉर्म में रहता है, मतलब सोल्यूशन फॉर्म में रहता है। उसमें हम NaCl का सोल्यूशन डालते हैं। NaCl का सोल्यूशन मतलब नमक, पानी में घुला हुआ, ओके। जब हमने वो डाला तो हमने देखा AgCl, जब हमने डाला ये AgNO3 का सोल्यूशन था, इसमें हमने NaCl का सोल्यूशन डाला। जैसे ही हमने ये दोनों एक्वस सोल्यूशन को मिक्स किया, हमें ना यहाँ कुछ सॉलिड चंक्स दिखने लगे थोड़ी देर बाद, यानी वो सॉलिडिफाई होके नीचे बैठ गया, जो कि था AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और NaNO3 बना जो कि इस सोल्यूशन में रहा। तो जब हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन हुआ है और नीचे, है ना, नीचे कुछ सॉलिडिफाई होकर के जम गया, ओके, दैट मीन्स दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द। क्लियर? तो हम इन पांचों स्टार पॉइंट से जान सकते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया है। चेंज ऑफ कलर से गैस निकलेगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, स्टेट चेंज हो सकता है या तो प्रेसिपिटेट बन सकता है। अगर हम सिर्फ एक चेंज देखें तो हम नहीं कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है, हमें एटलीस्ट 4 से 5 चीजें दिखनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यस इट्स अ केमिकल रिएक्शन। I hope this is clear. Now write down till here all the 5 points with the examples I've taken, and then we'll move on to the next topic. Alright, so now we know till here how we judge कि chemical reaction हो रहा है. Let's move on and see how many types of chemical reactions are there in this whole world, and by looking at the reaction, that line, we can judge what type of reaction is, मतलब किस तरह की ये chemical reaction है. Fine. So first type which we are going to discuss is the combination reaction. Combination reaction का मतलब क्या होता है? Anything when they are combining together
and forming one product. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मेरा A एक सब्सटेंस था, वो केमिकली कंबाइंड हुआ और AB बन गया, यानी AB एक नया प्रोडक्ट है. ओके, तो इसमें जनरली क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, हमने पहले भी जाना था दैट देयर इज अ केमिकल प्रोसेस in which a bond is formed or broken. So here in the combination reaction, the bonds are being formed. So we have A substance, we reacted with B and they form a bond between them and it is called now AB. Now AB is a different product. A और B का कोई property नहीं है इसमें, ये entirely different product है. Let's see. Now when two or more reactants combine to form a new product, that is one product. Okay, so now we will see Mg. Mg क्या है, मैग्नीशियम. इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया. ओके, सो दिस इज माय A एंड दिस इज माय B. ठीक है, और इसने रिएक्ट करने के बाद बॉन्ड फॉर्म किया और क्या बन गया, AB. लेकिन इसमें A और B के कोई भी गुण नहीं बचे हैं. नो प्रॉपर्टीज ऑफ A और B. इट्स entirely a different thing. Clear? Let's look up something else also. This is CaO, that is calcium oxide. सॉलिड फॉर्म में इसको हमने पानी के अंदर H2O, that is liquid, उसके अंदर हम घोला. जब हमने इनको आपस में रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या मिला, दिस इज A, दिस इज B. हमको क्या मिला, A और ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, दैट इज B, AB together. Okay, so this is called my combination reaction. Now burning of coal, देखो यहाँ पे क्या होता है, कोल क्या होता है, कार्बन. A ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, B क्या बन गया, A B. ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट होएगा, AB twice. Okay, now let's look up the formation of water. Hydrogen when reacting with my oxygen, it gives my water molecule, that is H2O. अब इसको हमने बैलेंस कैसे किया था, हो गया बैलेंस. अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, दो ऑक्सीजन है और एक कार्बन है. अब हम बर्निंग ऑफ मीथेन देखते हैं. ठीक है, तो मीथेन हमारा है CH4. CH4 को जब हमने O के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, ये O पहले तो जाकर के C के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और CO2 बनाएगा. ओके, दूसरा क्या होगा, ये H जो है और भी O के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा H2O. तो इस टाइप पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो हमारा क्या हो रहा है, जब भी कभी दो चीजें कंबाइन होकर के तीसरी न्यू चीज बन रही है, दैट इज टर्म्ड एज माय केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो इसीलिए हम इसका नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेट्स लुक इनटू अनदर टाइप व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, नाउ इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं. कैसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जब कभी भी हमारा जो एक एटम है उसको दूसरे एटम ने हटा दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया. फाइन, लेट्स रीड व्हाट इज देयर. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Both metal and non-metal take part in displacement reaction. Reaction of iron nails with copper sulfate solution. क्या होता है, देखो आयरन है और कॉपर सल्फेट. ठीक है, हम जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव इन नेचर है कॉपर से. ओके, अब ये जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, बोलेगा कॉपर को हटो आप. ओके, एंड ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, किक ऑफ कर देगा एंड खुद इस SO4 के सॉल्यूशन में बैठ जाएगा. तो बन गया FeSO4 और ये जब हट जाएगा तो सॉल्यूशन में फ्री हो जाएगा एज सॉलिड. तो हमारा जो कॉपर है वो नीचे बैठ जाएगा. फाइन, वैसे ही हम देखते हैं लेड को. लेड भी हमारा मोर रिएक्टिंग मेटल है. जब ये जाएगा कॉपर क्लोराइड के साथ, दैट इज CuCl2, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको हटा करके बिठा देगा अगेन इन द सॉल्यूशन और खुद बैठ जाएगा क्लोरीन के साथ PbCl2 बन के, दैट इज लेड क्लोराइड.
एंड जो हमारा कॉपर है वो सोल्यूशन में नीचे सॉलिडिफाई हो जाएगा। ओके, तो अब हम जज कैसे कर सकते हैं कि कोई कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या कोई लेस रिएक्टिव है? हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमने सारे हमारे एलिमेंट्स को पोजीशन किया हुआ है। ओके, तो सबसे टॉप में हमारा सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और सबसे नीचे हमारा सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए इजी करके दिया है, वो ऐसे, प्लीज स्टॉप calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. ठीक है, तो हमने ये जो सारे फर्स्ट इनिशियल लेटर्स लिए हुए हैं, ये सारे हमारे एलिमेंट्स के इनिशियल लेटर्स हैं। ओके, तो ये जब आप सीरीज को ऐसे याद कर लोगे तो आपको बोलेगा प्लीज स्टॉप यानी कि पी, पोटेशियम, स्टॉप एस यानी सोडियम। तो हमने सारे जो ये इनिशियल्स हैं ये फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट्स लिए। तो यू कैन वेरी वेल लर्न दिस रिडल एंड लर्न एंड मेमोराइज कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं आपको बोलूं एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो सबसे ऊपर है, जिंक से नीचे है। तो इसीलिए हमने देखा था जब यहाँ इन दोनों में कॉपर के साथ कौन रिएक्ट कर रहा था? आयरन। फाइन, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को हटा देगा। और कॉपर के साथ कौन रिएक्ट कर रहा था? लेड। लेड ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को हटा देगा। तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखी। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट in the reaction displaces the less reactive element from its compound, we call that as a displacement reaction. I hope this is clear. Please write down this with the reactivity series and then next we'll move on to the next type of chemical reaction. Alright, I hope you have written down the text and you have written down the series for the reactivity, which is very important because we will be doing the next type of reaction, which is my double displacement reaction. Now in your displacement reaction we actually talked about the more reactive element and a less reactive element. So the funda behind a displacement reaction is the more reactive element will kick off the less reactive element and will sit down in the solution, and the less reactive element would be a precipitate in that chemical reaction. Now what do you mean by a double displacement reaction? A double displacement reaction is also known as double replacement reaction. So I can call it as double displacement or double replacement also. Or metathesis is a type of chemical reaction where two compounds react and the positive ion, that is my cation, and the negative ion, that is my anion, of the two reactant switch places, forming two new compounds or products. Now what's happening? Don't get confused about the long statement stating positive cation and negative anion and anything. Don't get confused with the long terms and the long sentence. Just a simple funda. See what's happening here. If we take the reaction for Na2SO4. What is Na2SO4? Sodium sulfate with BaCl2, my barium chloride. So what's happening when Na2 and SO4 they are having a bond? When this bond is breaking, so one is becoming negative and the other one is actually a positive ion, because these are formed when ionic bonds are formed. Fine, these compounds are ionic compounds. So whenever they will break, they'll break into a cation and a negative anion.
Clear? Same ways, when you have BaCl2, then the bond will break, Cl will become negative, okay, it is electronegative ion, and Ba will become positive because it is electropositive. So it will become a cation. Now what will happen? It will switch places. So always in a reaction, a negative will get settled with the positive and a positive will get settled with the negative. No negative will settle and no positive will settle. हमारे यूनिवर्स का रूल ही यही है कि like charges repel, unlike charges attract. So we have unlike charges. तो ये दोनों तो like charges हैं, तो ये आपस में कभी नहीं बैठेंगे. अभी ये वाला जो Na है, which has positive charge, is sitting with the negative of SO4. Now what will happen? They will switch. Now this positive will go and sit with this negative, and this positive will come and sit with this negative. Are you getting the point? So it is the switching of cation, that is a positive ion, and the negative ion of the two reactant, fine, in which they form two new product. So can you see here? It is switching. They are just switching the place. Now what's happening? Ba is going with SO4 and becoming BaSO4, okay, and Na is going with Cl and it is forming NaCl. Now you would say, ma'am, but there is 2 and there is no 2. See beta, here you have 2 sodium and you have 2 chlorine. So 1 sodium and 1 chlorine will form NaCl, 2 will form 2 NaCl. Clear? So this is how we actually do a double displacement reaction. Now, if we move on to the second one, see here PV. PV is my positive, ion, and Na is my negative. That is, it is an ion. In this, if you say Ki, it is K is positive, I is negative, iodine. So potassium iodide. Okay. So now what will happen? This is going to switch with this and this is going to switch with this. See, it is KNO3 now and PbI2. Fine, lead iodate and potassium nitrate. Clear? Let's look up the third example. We have NaCN. Na is positive, Cn is negative. Now, in this, H is positive and Br is negative. So, what is happening? Na will go and sit with Br and H will come and sit with Cn, cyanide. So, what will form? NaBr, sodium and Br will come together and the other compound which will be formed is HCN. Is this clear? So, double displacement is nothing but displacement of ion, that is positive and negative, which is called cation and anion. So, anion would switch place or you can say cation will switch of places. Fine. And never an anion will go and sit with an ion. Always an ion will switch place and will sit with a cation. Clear? Now, after this, we have the another type of reaction which is redox reaction. Now what is redox reaction? It is a very important thing to know that if you break up the term redox, we get two terms actually. One is read, that is reduction, then is ox, that is for oxidation. So what is redox reaction? Redox reaction is not one reaction as whole, it is made up of two reaction. तो हमारे redox reaction में क्या होता है? दो reactions है, reduction और oxidation. तो जब दोनों reaction एक साथ होते हैं तब हम बोलते हैं redox reaction. Let's read कि हमारे statement में क्या लिखा है? An oxidation reduction. See, लिखा है ना? Oxidation reduction, that is redox reaction, is a type of chemical reaction. Of course, we are reading chemical reaction only. जिसमें it involves a transfer of electrons between two species. अब इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन टू स्पीशीज. आपको इंटरेस्टिंगली इफ यू वुड नो इट, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना बच्चा, कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे दो चीज होते हैं, या तो बॉन्ड फॉर्म होता है या तो बॉन्ड ब्रेक होता है.
जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है या ब्रेक होता है तो कुछ चीज नहीं होती है, कुछ अलग नहीं हो रहा होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का लेना और देना होता है। इट इज द गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। जैसे कि मैंने किसी को कुछ सामान दिया, दिवाली जाकर के दिवाली विश किया, सामान दिया और उसने एक्सेप्ट किया, तो हम लोगों में एक बॉन्ड बन गया एंड वी बिकम फ्रेंड्स। फाइन। वैसे ही one is giving, other is taking, bond is forming. If a bond is forming, it's a chemical reaction. Clear? So in this also, if it is a redox reaction, it's a chemical reaction. What is happening? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बिटवीन टू स्पीशीज। ऑफ कोर्स दो स्पीशीज के बीच में कोई ट्रांसफर होता है। क्लियर? नाउ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन reaction is any chemical reaction in which oxidation number of a molecule or atom or an ion changes by gaining or losing of electron. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बहुत समझने की और बहुत अच्छे से ना गौर करने की जरूरत है। इसको हम ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? CuO। CuO मतलब ये है हमारा कॉपर और ये हमारा ऑक्सीजन। ना यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज व्हाट इज द स्टेटमेंट सेइंग? एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज एनी केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन changes by gaining or losing of an electron. Now look here, जो हमारा कॉपर है it has an extra electron in the outer shell which it will give and will lose the electron and become stable. Okay, now क्या होता है कि ये जो Cu है ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। फाइन। और ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को क्योंकि दी ऑक्सीजन वांट्स इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ने उससे बॉन्ड ले लिया है, इलेक्ट्रॉन ले लिया और बॉन्ड फॉर्म कर दिया। क्लियर? ओके। अब यहाँ क्या होता है? इसमें बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके। अब अगर मुझे हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये जाके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। फाइन। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आल्सो हैज द कैपेसिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। और ऑक्सीजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल और एटम इज चेंजिंग बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तब उसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। So what is happening? This H is actually losing electron to whom? The O. Now what is happening? Cu is left behind and formation of water is taking place because H is giving its electron to oxygen. Clear? Okay. अब हम पढ़ते हैं पॉइंटर्स को कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है। तो अगर हमें ट्रिक देखना है, ठीक है ना, कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है या रिडक्शन में क्या होता है, तो ट्रिक क्या है? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? अगर कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। द नेम सजेस्ट ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। ओके। तो अगर कभी भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका उल्टा देखो, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि हाइड्रोजन निकलना। ओके। सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? क्लियर? और रिडक्शन क्या है? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है और क्या लूज कर रहा है? ऑक्सीजन, तो वो रिडक्शन है। यहाँ देखो, यहाँ पे Cu जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसका मतलब Cu क्या हो गया? रिड्यूस हुआ। और क्या ऑक्सीडाइज हुआ? हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो गई। फाइन। सो इफ अ प्रोसेस इज एक्चुअली losing the oxygen, it is reduction. Gaining of hydrogen is reduction. Vice versa, losing of hydrogen and gaining of oxygen is an oxidation reaction. Fine. अब पढ़ते हैं हम कि reducing agents क्या होते हैं और oxidizing agent. तो अब reducing agent क्या होता है? It is the substance which gives hydrogen or gains oxygen. तो क्या होता है? अगर कोई आए और मुझे
hydrogen दे. That means if some substance is giving me hydrogen, so I'm getting hydrogen, that means I am being reduced. तो इसका मतलब अगर किसी कोई सब्सटेंस आया और उसने मुझे हाइड्रोजन दिया, इसका मतलब उसने मुझे रिड्यूस किया, दैट मीन्स वो एजेंट कैसा हुआ, रिड्यूस करने वाला, यानी रिड्यूसिंग एजेंट. या फिर उसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर वो सब्सटेंस आया और मुझसे ऑक्सीजन खींच के ले गया, अगर मुझसे ऑक्सीजन चला जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. सी, ओके. तो अगर कोई एजेंट आया और मुझसे ऑक्सीजन खींच के चला गया तो फिर भी मैं रिड्यूस ही होंगी. So that's why a reducing agent is the substance which gives hydrogen or gains, that is it takes, oxygen. So it is the substance which is oxidizing itself and reduces other. खुद तो ऑक्सीजन लेकर के रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉरी, और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस. Same ways, if we go for reducing agent, it's a substance which gives oxygen. It is an agent or substance which is coming in the reaction and giving my oxygen. अगर रिएक्शन में आके ऑक्सीजन दे दिया, किसी को ऑक्सीजन मिल गया, that means it is being oxidized. Fine. See, gain of oxygen is oxidation. तो वो चीज ऑक्सीजन को गेन कर गया, that means वो ऑक्सीडाइज हो गया. दूसरे टर्म में देखेंगे तो अगर लॉस हो गया हाइड्रोजन का, तो एजेंट आया और उसने ऑक्सीजन देने के बजाय हाइड्रोजन मुझसे खींच लिया, तब भी वो क्या होएगा, ऑक्सीडाइज ही होगा रिएक्शन. तो व्हाट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इफ इट इज giving me oxygen or it is gaining, that is taking oxygen from the reaction. Okay, so or it is the substance which is reducing itself because it is taking hydrogen, so it will get reduced and oxidize the other which is there in the reaction. So what is my redox reaction? Nothing but a combination of oxidation and reduction. And we now very well know how we can say कि कुछ oxidize हो रहा है, gaining of oxygen and losing of hydrogen. और कब बोलते हैं हम कि कोई चीज reduce हो रहा है, gaining of hydrogen and losing of oxygen. Fine. I hope you get all these things. Please write down all the things which is there in the slide, each details, because these are very important thing to be kept in your mind when you judge the oxidation or reduction, that is a redox reaction. Fine. And then we will move on to the another type of reaction. All right, I hope you've written. Now let's move on to the next type of reaction, which is एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. जब मैं ये पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एक चीज बताया था कि कभी भी हम जब एक केमिकल प्रोसेस को होते हुए देखते हैं या केमिकल रिएक्शन को होते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा कोई कुछ चेंजेस हुए हैं, फाइन, उस रिएक्शन को होते हुए, और हम पहचानते हैं कि ये एक रिएक्शन है जो केमिकल रिएक्शन है. ओके, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था दैट देयर इज चेंज इन द टेम्परेचर. ओके, तब मैंने आपको बताया था अगर टेम्परेचर देना पड़ रहा है यानी उसमें लग रही है तो उसमें लग गई ना, ठीक है, तो उसमें कहीं से तो हीट एब्जॉर्ब करेगा. तो अगर लेट्स सपोज आसपास से करेगा तो आसपास से हीट लेगा और वो आसपास को ठंडा करेगा, यानी वो हीट ले रहा है. कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो वो रिएक्शन हुआ और खूब हीट बाहर निकालता है, तो वो क्या करता है, आसपास के एरिया को हीट अप कर देता है. क्लियर? अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में बिल्कुल इसी तरह की चीजें हैं. लेट्स रीड अप. An exothermic process releases heat and causes the temperature of the immediate surrounding to rise. तो ये कौन से तरह का रिएक्शन हुआ? वो रिएक्शन जिसमें केमिकल प्रोसेस होते ही हीट निकलती है और आसपास का एरिया गर्म हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड माय एक्सोथर्मिक. एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मतलब हीट. फाइन, जब हीट निकल रही है. एंडो मतलब लगना, फाइन, in, that is it is gaining, and thermic matlab heat. All right, now let's look up again. The rice, potato and bread we eat contains carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. We all know it's been done in the cells. This glucose combines with oxygen in the cell of our body and provide us energy. The special name of this reaction is called respiration and it's an exothermic process. Look here, touch your body.
whenever you are touching your body, your hands or palm, are you cold? I am in a room where there is AC, or I am in a place it is 2 degrees Celsius or 0 degrees Celsius. Do I become ice cold at 0 degree? No, my body temperature remains maintained same. उतना ही रहता है मेरा, मेरा बॉडी गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता। तो ये जो गर्म मेरा बॉडी रह रहा है, इसमें जो हीट आ रही है, ये आ कहाँ से रही है? कहीं से तो हीट आनी चाहिए जो मैं अब्जॉर्ब करूँ तो मुझ में ना गर्म होए। अगर मैं कोई एक लोहे का चम्मच लूँ या ये मेरा पेन लूँ, उसको मैं आग में रखूँगी तब जाके ये गर्म होगा, वरना ये ठंडा ही है। पर हम कहाँ से हीट ले रहे हैं? सो दैट 0 डिग्री में भी अगर मैं बैठूँ तो ये हमारा हीट जो है मेंटेन रह रहा है, वो है हमारे फूड से। तो जो फूड है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जब ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक होता है, बर्न होता है, तो हमारा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी ही नहीं निकलता, निकलता है हीट भी। ओके, और यही हीट है जो हमारी बॉडी को हीटेड रखता है, एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो respiration is this chemical process. In this chemical process, what is happening? Heat is released. तो ये chemical process कैसा हुआ? Exothermic. It is making the surrounding or the things in which this reaction is happening heated. तो heat release हुई. Clear? Same ways हम देखते हैं endothermic क्या होता है. Now, endothermic processes absorb heat and cools the surrounding. बस अगर सराउंडिंग से हीट ले रहे हो तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? ठंडा। ओके, नाउ द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? CO2। फाइन, CO2 को अगर हम वाटर में के साथ रिएक्ट कराए, ये कहाँ पे होता है मुझे बताना बाद में, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों रहे, तो हमारे पास होता है C6H12O6 which is my glucose and my oxygen। बता सकते हो ये कहाँ पर होता है? वेरी गुड, दिस इज फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस। सो ये जो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, पर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सन से जो हीट आ रही है वो ये रिएक्शन एब्जॉर्ब करता है, लेता है और फिर बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। फाइन, तो इसमें क्या होता है कि हीट लग रही है, हीट वो रिलीज नहीं कर रहा। जब वो हीट वहां पे लेता है तो आसपास ठंडा करता है, इसीलिए पेड़ों की छांव के नीचे अगर आप बैठो तो आपको ठंडक महसूस। क्लियर? So this is all about my exothermic and endothermic reaction. Hope this is clear. Let's move on to another topic. Fine. Which is corrosion. Okay. Now corrosion जो है वो हमारे इस chapter का एक another new topic है. It is now not the part of the types of reaction. Types of reaction हम खत्म कर चुके हैं, जितने तरह के types of reactions थे। अब हमारा जो next topic है वो है corrosion. Now जो corrosion है, अगर मैं पूछूं क्या होता है कोरोजन, कोई जनरल आइडिया आपके में दिमाग में आ रहा हो कि कोरोजन एक्चुअली है क्या? तो ऐसे समझते हैं कि मैंने अपने साइकिल को बहुत दिनों से टच नहीं किया, चलाया ही नहीं, और उसको ना बालकनी में या कहीं बरामदा में रख दिया, एंड आफ्टर 5-6 मंथ्स जब मैं उसको निकालती हूँ, टायर्स तो उसके पिचके ही होंगे क्योंकि उसमें हवा तो मैंने भरी नहीं थी। फिर मैं देखती हूँ कि टायर्स का जो रिम होता है ना, जो वो लोहे का बना हुआ रहता है, उसमें जंग लग गई है। फाइन, तो अब जब मैं उसको रिपेयर वाले के पास लेके जाती हूँ तो द पर्सन सेज, मैम ये तो खराब हो गया है, इट कैन नॉट बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, और इसका कुछ हो नहीं सकता, आपको चेंज कराना पड़ेगा पूरा टायर क्योंकि इसमें जंग लग गया है। ओके, ना मैं तब सोचती हूँ व्हाई दिस थिंग व्हिच हैज हैपेंड, दैट इज जंग, दैट इज an orange powder substance has created so much damage that it is you know that it is irreversible, you cannot repair it. So there comes the answer to my question is corrosion. Now corrosion not only happens with the rim of the cycle, सिर्फ rim of the cycle में ही नहीं होता corrosion, बाकी चीजों में भी corrosion होता है। तो corrosion क्या चीज है? अब कोई चीज हो गई, वो वापस रिपेयर या रिवर्ट नहीं हो सकती, दैट मीन्स वो एक केमिकल प्रोसेस है। तो कोरोजन हम यहाँ इस चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोरोजन जो है ये भी एक केमिकल प्रोसेस ही है और ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है।
ना क्या है केमिकल रिएक्शन बताते हैं, लेट्स रीड आउट करोजन. इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर करस्पॉन्डिंग कंपाउंड. तो वो मेटल जो है वो कंपाउंड बन जाते हैं. क्लियर? ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, water, acid, gases, etc. present in the atmosphere. This is very important. हम यहाँ पे खुद से रिएक्शन करा करके करोजन नहीं करवा रहे हैं. तो अगर हम कभी कोई चीज़ पर्पसफुली एक चीज़ लिया, दूसरी चीज़ के अंदर डाला और फिर रिएक्शन कराया, तो वो हमारा नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, नॉर्मल केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो हम बोलते हैं ये केमिकल रिएक्शन है. अब करोजन अलग क्यों है? क्योंकि रिएक्शन तो हो रहा है, केमिकल प्रोसेस तो है, पर ये अपने आप होता है. इट हैपेंस इन द एटमॉस्फेयर. ओके, सो नाउ दिस इज कॉल्ड माय करोजन. इट कैन हैपन विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एटसेट्रा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? देखो, रस्टिंग, जो मैंने आपको जंग की बात बताई थी. व्हाट इज रस्टिंग? आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड माय रस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्ट. ठीक है ना? क्या होता है? आयरन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पे मॉइस्चर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. जब ये होता है तब आपको एक कंपाउंड मिलता है विच इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एंड उसमें मॉइस्चर का भी कंटेंट रहता है विच इज इनटू H2O. इनटू H2O मतलब देयर इज सम अमाउंट ऑफ वाटर आल्सो विच इज प्रेजेंट. क्लियर? ना दूसरे तरह का रस्टिंग जो होता है, यानी कि दूसरे तरह का कोरोजन, रस्टिंग नहीं, रस्टिंग सिर्फ आयरन के साथ होता है. दूसरे तरह का कोरोजन जो होता है वो है सिल्वर आइटम्स को टार्निशिंग हो जाना. कभी आपने देखा सिल्वर की कोई चीजें रखी है, मूर्ति रखी है, प्लेट रखी है या कुछ भी ऐसा आइटम रखा है या ज्वेलरी रखी है, वो अजीब सा ब्लैकिश हो जाता है. वो क्यों होता है? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है. आओ देखते हैं क्या होता है. व्हेन सिल्वर कम्स इन कांटेक्ट विद सल्फर and sulfur compound in the air, it turns black due to formation of silver sulfide which is Ag2S. and ये क्या हो रहा है? देखो, सिल्वर है मेरा Ag, वो H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है Ag2. दिस इज एक्चुअली Ag2S. ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है. अब आप बोलो कि मैम सल्फर कहाँ से आ गया? एटमॉस्फेयर में बिल्कुल प्रेजेंट होता है. H2S गैस होता है हमारे पास, सल्फर ऑक्साइड होता है हमारे पास. दीज आर ऑल द केमिकल्स विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज पोल्यूटेंट्स. फाइन. तो क्या होता है? वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके काला काला सा टार्निश सब्सटेंस बनाता है विच इज Ag2S. ओके, अब ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज होता है. हम लोग कभी कभी देखा है ब्लैक मेटल की ज्वेलरीज बनाते हैं, टार्निश्ड, उस लुक्स में. तो जब ऐसा कोई ज्वेलरी या टार्निश ज्वेलरी बनानी होती है तब ये प्रोसेस काम में आता है. ओके, नाउ तीसरे तरह का कोरोजन है कॉपर का कोरोजन. कॉपर को जब हम एयर में एक्सपोज करके रखते हैं तब क्या होता है? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रेड कॉपर ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, देखो, कॉपर को हमने रखा और ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और ये बनाया कॉपर ऑक्साइड विच इज Cu2O. क्लियर? अब यही Cu2O, ठीक है ना, जब दोबारा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CuO विच इज कॉपर ऑक्साइड. Okay, now copper oxide reacts with substances like carbon dioxide, sulfur dioxide, water in the air and forms blue malachite Cu2OH whole twice. Fine, OH, CuOH whole twice, malachite, and green as this. तो इसको बोलते हैं ब्रोचेंटाइट. ओके, ये दोनों कंपाउंड मैलेचाइट और ब्रोचेंटाइट जो है ये कॉपर के कंपाउंड है. जब कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट होके पहले तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा. ये कॉपर ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड और H2O दैट इज वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं जो कि ब्लू या ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब कभी कॉपर का कोई सब्सटेंस रखा है, कोई पतीला, कोई ग्लास या कुछ कोई यूटेंसिल, तो वो थोड़ा सा ब्लू ग्रीन टाइप का अजीब सा रिएक्शन देता है, सब्सटेंस ऊपर ना लेयर पे बनते हैं। तो ये हमारा कुछ नहीं है, दीज आर दिस कंपाउंड विच आर बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ copper oxide and reacting with these elements in the air and forming that compound. Clear? Let's move on to another topic which is corrosion का प्रिवेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब corrosion तो हो गई, जंग लगना था, जंग लग गई, मेरा चीज खराब हो गया, पर मुझे अगर उस चीज को खराब होने से बचाना है तो क्या क्या मैं कर सकती हूँ। फर्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। ओके, नाउ व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग हम लगा देते हैं टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्ट। तो लेट्स सपोज ये मेरा एक स्टील या आयरन का मेरा पेन है, मुझे इसको रस्टिंग से बताना है, तो मैंने इसको जिंक के कोटिंग कर दी। ठीक है, अब जिंक की कोटिंग कर देने से क्या होगा कि मेरा ये जो अंदर का आयरन है ये तो बच गया, अब ये रिएक्ट नहीं होगा, ऊपर क्या आ जाएगा, जिंक का कोटिंग। फाइन, तो अब ये मेरा जो रस्टिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अनदर प्रोसेस इज एलॉइंग। तो एलॉइंग में क्या करते हैं, हम मेटल को मिक्स करते हैं विद अनदर मेटल और नॉन मेटल टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज एंड डज नॉट लेट कोरोजन टू अकर। तो हम क्या करते हैं, आयरन को कुछ कुछ और चीजों के साथ ना मिक्स कर दिया ताकि अब कोरोजन ना हो सके, एयर के कांटेक्ट में वाटर के कांटेक्ट में एयर आए और हमारे आयरन के साथ अगर रिएक्ट करे तो वो रस्टिंग ना हो पाए। क्लियर? नेक्स्ट इज पेंटिंग। सिंपली एक आयरन की चीज लो, उसको पेंट कर दो, अब एयर का कांटेक्ट और मॉइस्चर का कांटेक्ट हट गया ना उसके सरफेस से, तो रस्टिंग नहीं होगी। क्लियर? सो अ कोटिंग ऑफ पेंट प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। ओके, नाउ ग्रीजिंग और ऑयलिंग। A coating of grease or oil prevents air and moisture from the coming into contact with iron. Same वही पेंट जैसा फॉर्मूला, आयरन का सब्सटेंस लो, उसके ऊपर ऑयल लगा दो या ग्रीस लगा दो, तो वो एयर और मॉइस्चर को रोक देगा उसके सरफेस पे आने से और रिएक्शन नहीं होगा, रस्टिंग नहीं। क्लियर? नोट डाउन दीज सिंपल थिंग्स by which you can prevent corrosion and we'll move on to the next topic of the chapter. Okay? All right. Now, next topic of the chapter is rancidity. Now, what is rancidity? Rancidity क्या होता है? It is the process where unsaturated fat, we have to look here, unsaturated fat and oil in food undergo oxidation resulting in an of odor, taste या texture. फाइन, अब जो करोजन हमने देखा ना, वो एक केमिकल प्रोसेस है जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा केमिकल प्रोसेस हुआ, केमिकल चेंज आया और हमारे किसी चीज को खराब कर गया, वी कैन नॉट रिवर्ट बैक। ठीक है, वो सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के साथ होता है, यानी मिनरल आइटम्स के साथ होता है। क्लियर? ये वाला जो रैंसिडिटी है, इट इज रिलेटेड टू फूड विच इज बायोडिग्रेडेबल आइटम। ओके, तो कोरोजन और रैंसिडिटी में बस इतना ही फर्क है, दोनों में केमिकल प्रोसेस है, बट इतना ही फर्क है कि ये बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के साथ होता है, जनरली फूड आइटम, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल दैट इज मिनरल आइटम्स के साथ। क्लियर? आओ देखते हैं क्या होता है उसमें। रैंसिडिटी में भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल जो कि फूड में प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजर के उसका जो ऑर्डर है, टेस्ट है और टेक्सचर है बदल जाता है। ठीक है, अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि जब हम कोई तेल की चीज ना, जैसे कि कोई नमकीन हो गया या कुछ, बहुत दिनों तक डब्बे में भर करके रख दे, ऐसे लूज छोड़ दे, ओके, तो हम काफी दिनों के बाद जब हम उसको खाने जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसका टेस्ट बदल गया, अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सा हो गया खाने में, तो हम उसे नहीं खाते हैं, फिर थ्रो इट। फाइन, वो किस लिए होता है? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आकर के ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और उसका जो टेस्ट है और जो उसका ओडर है वो खराब हो जाता है।
उसका स्मेल खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। अब कॉजेज क्या क्या है इसके? कॉजेज है एक्सपोजर ऑफ एयर, एयर इसलिए क्योंकि एयर से ही तो होएगा उसका ऑक्सीडेशन, फाइन, एयर से ही ऑक्सीडेशन होएगा, एंड ऑक्सीडेशन मतलब उसमें ऑक्सीजन जाना। लाइट, लाइट भी कभी कभी क्या करता है, रैंसिडिटी को फैसिलिटेट करता है। एंड हीट, हीट से भी जो हमारे फूड जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल आइटम होते हैं उनमें केमिकल चेंजेस इनिशिएट हो जाते हैं। So these factors accelerate oxidation of unsaturated fatty acid. Now what are unsaturated fatty acid? इस तरह के फैटी एसिड जिसमें कार्बन के डबल चेन होंगे, ठीक है, या ट्रिपल चेन होगा। अब ये सारी चीजें जो है हम केमिस्ट्री में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है अनसैचुरेटेड, क्या होता है सैचुरेटेड, कब बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन। फाइन, नाउ देखिए माइक्रोबियल एक्शन से भी रैंसिडिटी होता है। कैसे? बैक्टीरिया ने किसी फूड आइटम के ऊपर एक्ट किया और उसको खराब कर दिया, वो ओडर भी देने लगा बैड, टेस्ट भी खराब हो गया और उसका टेक्सचर भी खराब हो गया, यानी इसमें हो गई रैंसिडिटी। तो मैंने क्या बोला था, रैंसिडिटी कुछ नहीं है, अगर मेरा केमिकल प्रोसेस हो रहा है किसी बायोडिग्रेडेबल आइटम में तो वो रैंसिडिटी कहलाता है। क्लियर? तो उसके माइक्रोबियल रीजन भी हो सकते हैं। दूसरा हाइड्रेशन, पानी से, ठीक है, पानी और बहुत ज्यादा ओवर हाइड्रेशन से भी रैंसिडिटी हो सकता है। ना इसको हम बचाएं कैसे, इसका प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहला प्रिवेंशन, अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के उसका स्मेल और उसका टेक्सचर या टेस्ट खराब हो रहा है तो हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट वहां से ऑक्सीजन खींच लेगा या ऑक्सीजन को वहां से खत्म कर देगा और उससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि मेरी रैंसिडिटी प्रोसेस नहीं होगी। वो क्या क्या होता है? बीटा कैरोटीन एंड विटामिन सी एंड ई टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज। फाइन, तो हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज कौन कौन बचा सकता है? बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन ई। नेक्स्ट इज हम एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज कर सकते हैं फूड में, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स हमने आजकल देखा है, हमारा हर पैकेज फूड, चिप्स हो गया, सॉस हो गया, बिस्किट हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो खराब हो सकती है लेकिन उसमें वो खराब होती नहीं है, 8-8 महीने, 10-10 महीने, 1-1 साल तक की उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो वो क्यों होती है? अगर हम नॉर्मल बना करके रखे चिप्स घर में, तो वो तो खराब हो जाती है, उसमें तो बदबू आने लगती है, पर जो मार्केट में पैकेट चिप्स आते हैं उसमें तो कभी नहीं आती। इट इज बिकॉज दे आर पैक्ड विद द preservatives and antioxidant. So what are the preservatives? BHA, that is butylated hydroxy anisole. ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। That is BHA, butylated hydroxy anisole, and the other preservative is BHT, that is butylated hydroxy toluene. फाइन, ये दोनों नेम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज आप इन दोनों को याद कर लेना। ये दोनों प्रिजर्वेटिव जनरली हमारे फूड में होते हैं ताकि हमारे फूड को ओडर, टेस्ट और टेक्सचर में खराब होने से बचाए एंड लॉन्गर पीरियड तक सेफ रखें। और दूसरा क्या प्रोसेस हो सकता है? स्टोर फूड इन रेफ्रिजरेटर एंड इन एयर टाइट कंटेनर्स। फाइन, तो एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो टेम्परेचर लो रहेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, इसका मतलब वो खराब नहीं होगा, रैंसिडिटी से बच जाए। आई होप यू आर वेल वर्स्ड विथ ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। रैंसिडिटी हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। वी आर ओवर विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री and we will next head on to the next topic, next chapter of chemistry, that is acid, base and salt, in the next lecture. Thank you so much.